in continuance with other forces. So I already discussed three forces: CRPF, CSF, BSF. Now it is fourth force, that is ITBP, Indo-Tibetan Border Police. For those candidates who are appearing in interview, this is important. You should know about force. And those candidates who at least give first choice any force, you should know more detail about that force. ये जो वीडियोस हैं, these videos are not comprehensive in the sense no information is sufficient. In fact, if some question is asked in deeper, then this will not be sufficient, but this will give you basic information. In normal, in general, they are asking basic question. Why I am saying this video will not be sufficient? Because there are so many information, so much information related to any topic. Can it be possible to include all? No. It is about general aspects, general dimension. So many people are giving ITBP as first choice. So many candidates are having dream as ITBP. But whatsoever your preferences, you have to give your choices and you will get the force of your rank based on your rank and choice. If you are having top rank, then definitely you are getting based on your choice. But if you are having not so good rank, then it depends. Okay, but you should know about basic. ITBP is a force which was established in 1962, and that year was very challenging year for India. And you should also remember this fact sometime now, small things, if we are noticing, that will give better age. So 24th of October is also celebrated as UN Day. So United Nations was also established on same date in 1945. So that is also important fact. And this type of things now, when asked in interview, that gives at least yes, I'm knowing about that. Then Director General of the Force is Rahul Dasgotra, IPS. Okay, obviously all forces are led by IPS officer. Motto of the force is valor, steadfastness, commitment, means shaurya, dridhata, karmanishta. Okay. Employees, it is means see exact number they are not asking. You can say roughly 89,000 or roughly 90,000. Okay, roughly 90,000. Annual budget is 10,370.08 crore, approx 1.2 billion, means 25-26, means this financial year this has been allocated. These numbers are not asked in exact figure or personal or something, but you should have at least rough estimation. Motto of all five forces you should know. If you are knowing, it is better, otherwise it is factual information, but at least for first choice, the force which is on your first list, first choice, on first preference, you should know about that. 1962 was very, you can say, bad year for India, because India, ये जो कहते हैं ना कि हिंदी चीनी भाई भाई, इंडिया tried to have good relation with China. In fact, our first Prime Minister Jawaharlal Nehru gave Panchsheel policy, and with Chow Enlai, the then Prime Minister of China, he signed the document and he tried his level best. Jawaharlal Nehru was a champion of peace. In fact, he was a protege of Mahatma Gandhi. And on the path of Mahatma Gandhi, he tried world peace. Nehru was not an Indian leader, he was a world leader. So many people were admiring Nehru. And in those era, in fact, this war was faced by Nehru himself. He was prime minister. And this war, Nehru may have lived some more years, but this war was devastating for him also, because he never thought
कि China will stab in the back, but that happened. So this type of things, these type of dimensions, you should also explore. What happened? For example, Dalai Lama, His Holiness the Dalai Lama. Before that, means 1959, he came to India. India gave asylum, and at that time, obviously, Dalai Lama at this time is old enough. At that time, he was very young. Nehru welcomed him, and this issue was also means concern for China. China was not interested in this type of things, but that happened. So you should know about that thing also. See, knowing about any force or anything is not just mere cramming certain things. It is about understanding the situation. It is about connecting the dots with different incident that happened during any era. And this era, with India and China faced war. Obviously, that war was bad outcome for India. India got decimated. India got means more harm. Okay, at that time situation was very difficult. Newly born India was having so many challenges on other fronts, and 1960 decade was so much challenging. India faced war with China, and again 1965 India faced war with Pakistan. एंड उस टाइम में आप देखोगे कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था, जो फूड हमें रिक्वायर्ड था वो नहीं मिल रहा था. यू मे बी अवेयर अबाउट PL 480. थ्रू PL 480 we were getting wheat from America, and that also was not of good quality, and they were not sending on time. They were asking so much concessions and all. So ये जो डिकेड है 1960 का, वो एक बहुत चैलेंजिंग डेकेड है. और इसी डेकेड में देखोगे आप हमारे जो फोर्सेस हैं ये इस्टेब्लिश हुए. इनफैक्ट जो भी आप देख रहे हो CRPF जो है वो आपका इंडिपेंडेंट के पहले ही बना हुआ है, लेकिन और अदर जो देख रहे हो इसी ड्यूरेशन में आपके सारे फोर्सेस आए हैं. तो इसको जानना जरूरी है, क्योंकि 1960 के डिकेड आप यदि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देखते हो तो 1960 डेकेड को एज ए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिया के चैलेंजेस के फेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानोगे. शास्त्री जी उस ड्यूरेशन में, शास्त्री जी भी प्राइम मिनिस्टर बने. अनफॉर्चुनेटली उनका ताशकंद में डेथ हो गया 1966 जनवरी मंथ में. और उसी जनवरी मंथ में आप देखोगे कि हमारे जो महान साइंटिस्ट है होमी जहांगीर भाभा जी, उनका भी डेथ हो गया. तो वो सब चीजों को थोड़े से रिलेट कर सकते हो तो वो बेटर है. द फोर्थ वाज रेस्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ 1962 वॉर विद स्ट्रेंथ, यानी कि जो वॉर था अक्टूबर और नवंबर में था, ठीक है ना. अक्टूबर नवंबर में वॉर हो रहा था, ठीक है. विद द स्ट्रेंथ ऑफ 4 battalions फॉर कलेक्टिंग इंटेलिजेंस, fighting conventional and guerrilla warfare, and improving Indian communication system along the Chinese border. It was raised under CRPF Act. देखो जो भी फोर्सेस, जैसे आप BSF देखो, आप ITBP देख रहे हो, या फिर आप CSF देखो, एक तरह से ये सारे फोर्सेस जो हैं एक तरह से इनिशियली जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के तौर पे देखोगे तो CRPF एक्ट के तहत बने, क्योंकि CRPF जो है वो ओल्डेस्ट आपका जो ये इन पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस में है. They took part in 1965 Indo-Pakistani War as well as the Indo-Pakistani War of 1971. In 1978, the force was reorganized with 9 service battalions, 4 specialist battalion and 2 training centers. ठीक है. ITBP force was raised, ये already हम discuss कर चुके हैं. At present, the ITBP guards 3,488 kilometer long India-China border ranging from Karakoram Pass in Ladakh to Jachepla in Arunachal Pradesh. Apart from this, the force also has important roles in many internal security duties and operation against the left-wing extremism in the state of Chhattisgarh. देखो एक चीज है अभी आपको जानना चाहिए ये चीज कि जो हमारे सारे फोर्सेस हैं, इनफैक्ट देखोगे कि वन बॉर्डर वन जो फोर्स के संबंध में आप ऑलरेडी जान रहे हो, उसके संबंध में जैसे
जो आईटीबीपी है उनको डिफरेंट रोल दिया गया है, एसएसबी को डिफरेंट रोल दिया गया है, बीएसएफ को डिफरेंट रोल दिया गया है बॉर्डर गार्डिंग में। इन एडिशन टू their main core duty. Now all forces are, at least four from battalions are engaged in left-wing extremism also. Because every forces has its own expertise. तो एक तो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, प्लस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्लस जो डाइवर्सिफिकेशन। अब किसी चीज को एक तरह से सपोज करो कि कोई हाई एल्टीट्यूड पे, आईटीबीपी क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे है, तो आप हमेशा वहीं नहीं पोस्टेड रहो, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी उनको जानना चाहिए। ठीक है। तो आज की डेट में सारे फोर्सेस को, इवन जैसे सीआईएसएफ है, तो उनको भी कुछ बटालियंस को, कुछ यूनिट्स को लगाया जाता है। मोस्ट ऑफ द आईटीबीपी बॉर्डर आउटपोस्ट आर लोकेटेड एट अल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 9,000 फीट टू 18,800 फीट, where temperature drops to minus 45 degrees Celsius in extreme winters. ITBP is a specialized armed police force of the nation which trains its personnel in various disciplines including mountaineering and skiing, apart from intensive tactical training, thereby creating a distinctive image of the force. देखो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है हर पर्सन के लिए, अलग अलग। इनफैक्ट आईटीबीपी में देखोगे कि जो आईटीबीपी है जनरली कैजुअलिटी इसमें भी बहुत कम है, लेकिन जैसे देखोगे कि ये फोर्स जैसे है कि चाइना के साथ हमारा होस्टाइल सिचुएशन तो जरूर है, लेकिन होस्टाइल सिचुएशन में भी देखोगे कि एक्टिव फायरिंग वो नहीं होता है जनरली। मतलब एक्सेप्शनल केस में, जैसे आपने जो देखा ये गलवान वैली क्लैश में, जिसमें हमारे बहुत सारे जो पर्सनल थे वो मैटेड हो गए, उसमें साइड 20 के आसपास, जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी, जिनको पोस्टोमसली महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो वो सिचुएशन चाइना के साथ हुआ, लेकिन चाइना के साथ देखा जाए, जैसे डोकलाम क्राइसिस भी हुआ, तो आपके फोर्स स्टैंड बाई मोड में है, वो टेंस सिचुएशन है, लेकिन जनरली एक्टिव फाइट नहीं होता। बट जो हार्ड सिचुएशन है, टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो हर पर्सन अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, जिनको जो अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इस वजह से देखोगे कि जो आईटीबीपी हैं उनके लिए बेलगांव जो कर्नाटक है, तो कर्नाटक में देखो, कर्नाटक में एक बहुत सारे एरिया जो है उसमें बहुत प्लीजेंट वेदर है। तो वहाँ एक तरह से उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि जहाँ जो जवान्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं और जो पर्सनल हैं, वो वहाँ चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ दिन के लिए यहाँ इनको थोड़ा सा अच्छा टाइम मिले। सो आईटीबीपी ऑल्सो कंडक्ट्स रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स फॉर नेचुरल कैलेमिटीज इन द हिमालयन रीजन। The force has responded in hundreds of search, rescue, and relief operations over the years to provide support to thousands of citizens in distress due to various calamities. The force has a glorious history of the past 6 decades in which the Jawans of the ITBP have made many sacrifices in the line of duty and in the service of the nation. नॉर्मली देखोगे कि जो ये सारे एरिया हैं, तो इसमें नेचुरल कैलेमिटी बहुत सारे आते हैं, एवलांचे आ रहा है, फ्लड आ रहा है, और बहुत सारी चीजें। तो आईटीबीपी एक तरह से इसमें भी ट्रेंड है, इसके लिए भी है। देखोगे कि जैसे उत्तराखंड में आप देखो फ्लड वगैरह के सिचुएशंस आते हैं, या फिर एवलांचे वगैरह आते हैं, या फिर उस टाइप के सिचुएशंस आते रहते हैं, अर्थक्वेक टाइप के सिचुएशन। तो हाँ, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। प्लस ये वो फोर्स है जो नेचर को भी प्रोटेक्ट करने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। जो इंडिया के ग्रीन कवर्स हैं उनको भी मेंटेन करने में ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, तो इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है। In year 2004, in pursuance of government recommendation on one border, one force, the entire stretch of India-China border comprising 3488 kilometer was assigned to ITBP for border guarding duty, and accordingly, ITBP replaced Assam Rifle in Sikkim and Arunachal Pradesh in 2004. तो देखो असम राइफल बहुत सारे एरिया में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत एरिया में असम राइफल्स हैं, और वो भी उसमें से बहुत सारे पीपल जो हैं वो आर्मी से आते हैं। कमांड, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर भी होते हैं, जो जो हेड ऑफ द फोर्स हैं, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो बहुत सारे जो ड्यूटी हैं दिया गया है सीएपीएफ को, यानी कि आईटीबीपी को। देखो सीएपीएफ और आर्मी में डिफरेंस ये होता है कि आर्मी एक तरह से वॉर के लिए ज्यादा ट्रेंड है,
इसी वजह से देखोगे कि जो आर्मी के मैक्सिमम जो पर्सनल हैं, वो उनका जो टेन्योर ऑफ जॉब क्या होता है, करीब 19 या 20 जो भी है उसमें से, डिपेंडिंग ऑन किस एज में, उसके बाद नेक्स्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्स, यानी कि लेस देन 40 ईयर्स के एज में वो रिटायर हो जा रहे हैं। लेकिन जो सीएपीएफ में क्या है, पहले 57 ईयर्स था, अब 60 ईयर्स के एज में। तो अब जो 50 ईयर्स के हैं, 55 ईयर्स, तो वो एक्टिव फाइट के लिए आप नहीं हो, आप बॉर्डर गार्डिंग के लिए हो, सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए हो। इफ एनी सिचुएशन अराइजेज तो आप वहां जाते हो। मेन फंक्शंस को यदि हम देखें आईटीबीपी के, तो 4 टास्क आप 4 एरिया में डिवाइड कर सकते हो। तो विजिल ऑन द नदर्न बॉर्डर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ बॉर्डर वायलेशन एंड प्रमोशन ऑफ द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग लोकल पॉपुलेशन। देखोगे कि जो बॉर्डर एरिया में पीपल होते हैं, तो बहुत बार उनको ना बहुत हार्श सिचुएशन फेस करना पड़ता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि जैसे पाकिस्तान के साथ बीच बीच में सेलिंग होते रहता है, फायरिंग होते रहता है। तो जो उस एरिया में है, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम पीसफुल एरिया में होते हैं, तो कुछ सिचुएशन होता है तो बहुत परेशान होते हैं। सोचो उन लोगों में, उन एरिया में जहाँ बराबर इस टाइप का प्रॉब्लम होता रहता है, तो वहाँ के लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी करना। चेक इलीगल इमिग्रेशन, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग एंड क्राइम्स। ये देखो अभी जो इलीगल माइग्रेशन का इश्यू जो है इंडिया यूएस के संबंध में भी आप देख रहे हो, तो इस टाइप का भी ऑब्वियसली है कि देखो हर कंट्री जो होता है अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट रखना चाहता है। और जो दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो कुछ गलत इंटेंशन लेकर के लोग घुस रहे हैं, और कुछ होते हैं कि रियली में वो पीड़ित हैं, फिर भी लेकिन आप इलीगल तरीके से अलाउ नहीं करोगे ना। जैसे अमेरिका जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जा रहे हैं, कि वहां जाएंगे तो झाड़ू भी लगाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जिनकी स्थिति खराब है, तो वो भी जा रहे हैं। तो लेकिन हमको हर कंट्री अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सिक्योरिटी टू सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, बैंक्स एंड प्रोटेक्टेड पर्सन। अभी देखो जैसे जो आपने देखा कि नॉर्मली जो वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है, तो वो सीआईएसएफ जनरली प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कुछ कुछ एरिया है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स हैं, उसको सीआईएसएफ के अलावे मीन्स, अब दोनों साथ में ऐसा नहीं है कि वर्क कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जो इंस्टॉलेशन है उसमें कुछ कुछ में आईटीबीपी भी है, इनफैक्ट कुछ में देखोगे आप सीआरपीएफ भी है। रिस्टोर एंड प्रिजर्व ऑर्डर इन एनी एरिया इन द इवेंट ऑफ डिस्टर्बेंस, कोई भी ऐसी सिचुएशन होता है तो दे विल बी फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ITBP battalions are also providing security to various installations of national importance throughout the country, which includes Rashtrapati Bhavan, Vice President House, रूमटेक मोनास्ट्री सिक्किम में, तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली, लवासना आपका उत्तराखंड, एंड वेरियस सेंसिटिव इंस्टॉलेशन इन चंडीगढ़ एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब एक्सेट्रा। देखो एक और चीज कि आईटीबीपी का ट्रेनिंग भी आपका मेन जो बेसिक एज असिस्टेंट कमांडेंट जब आप बनते हो, तो आईटीबीपी एकेडमी भी आपका मसूरी में है। और जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, वो भी उत्तराखंड में ही है, आपका मसूरी में ही। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा चीज है कि आप उस शहर में आपकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि एक तो आपको उस अल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग और उस कंडीशन में ट्रेनिंग करवाया जाना चाहिए, ताकि आप जो रियल में वर्क करोगे उससे आप एक्लेमेटाइज्ड रहो। वो चीज भी जरूरी है। प्लस जो आपका एक माउंटेनियरिंग और स्कीइंग इंस्टीट्यूट है, वो औली में है, वो भी आपका उत्तराखंड में ही है। तो मेनली आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो उत्तराखंड में ही होती है, ताकि उत्तराखंड में वैसी सिचुएशंस आपके हैं। In view of increased Maoist activities in various parts of the country, ITBP was inducted in districts Rajnandgaon, Chhattisgarh in December 2009 to thwart Naxal menace. At present, 8 battalions are deployed in Rajnandgaon, Narayanpur, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो कुछ बटालियंस हैं वो वहां भी आपके डिप्लॉयड हैं, और ये हर फोर्स का अभी किया जा रहा है। देखो जो आपकी माओइस्ट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी फोर्स उसमें सीआरपीएफ है। और इनफैक्ट जैसे आप देखोगे कि कोबरा बटालियंस हैं, 10 कोबरा बटालियंस हैं। कोबरा बटालियंस तो इसी टाइप के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो सीआरपीएफ हाईएस्ट नंबर में है माओइस्ट चैलेंजेस को फेस करने के लिए। लेकिन बीएसएफ को भी लगाया गया है, कुछ यूनिट को सीआईएसएफ को भी लगाया जा रहा, कुछ एसएसबी को भी, और आईटीबीपी का भी देख रहे हो, तो सबका लगाया जा रहा है। एट प्रेजेंट ए वेल इक्विप्ड एंड हाईली ट्रेन्ड टीम of elite commandos are deployed in Afghanistan for providing security to the Indian embassy in Kabul.
एक तरह से ये जो अफगानिस्तान में है, तो उसमें भी हम अफगानिस्तान में और कुछ जो अदर यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी, देखो पीस कीपिंग मिशन में भी सीआरपीएफ से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, लेकिन आईटीबीपी से भी फॉरेन जगह पे पोस्टेड है। आईटीबीपी इज ऑल्सो एंगेज्ड इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड ऑल्सो आईटीबीपी कैंप टिगरी में भी कुछ का कभी जैसे हम एक टाइम यहाँ पे गए थे, ठीक है ना। एंड न्यू दिल्ली प्रोवाइड्स, ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग टू इंडियन पुलिस ऑफिसर्स फॉर डिप्लॉयमेंट इन यूएन मिशन। देखो जब किसी का यूएन मिशन में आप जाते हो तो आपके कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग होते हैं, तो उसके लिए भी आईटीबी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसमें भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और ऑल्सो रेस्क्यू ऑपरेशंस और इट्सेट्रा जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी उस एरिया में वो डील करते हैं। ITBP is at the forefront of the movement for the preservation of the Himalayan environment ecology। ओके, जो ऑलरेडी हमने बोला, देखो ये नेचर को भी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि आप नेचर के एकदम क्लोज में रह रहे हो। इनफैक्ट जो भी जैसे फोर्सेस आपके, खास करके जैसे जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, तो एक तरह से आप बहुत सारे एरिया में आप नेचर के क्लोज में ही रहते हो। अब लेटेस्ट एक जैसे केसेस भी है, फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे जो इंडिया भूटान बॉर्डर में है या नेपाल वाले साइड में ही कुछ कुछ में है, तो काफी वहाँ सीनिक ब्यूटी है, वो नेचर के नजदीक है। तो नेचर के नजदीक जब आप होते हो तो उनके प्रिजर्वेशन भी जरूरी होता है, और ये कहीं ना कहीं इसमें से आईटीबीपी इसमें कर रहा है। आईटीबीपी हैज टेकन अप इन a big way the task of greening the Himalayan region, especially in the inner Himalayas. Being the only human presence on forward area, it has taken on itself the task of maintaining the delicate balance of flora and fauna। कभी कभी देखो जब फोर्स में जाते हो तो कभी कभी सिचुएशंस बहुत टेंस हो जाते हैं कि इट इज नॉट अबाउट ना कि आपका दुश्मन वहां फायरिंग कर रहा है, कभी कभी आपके हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। आप सियाचिन में ही देखो, सियाचिन में जब से हमने ऑपरेशन मेघदूत किया 1984 में, तो तब से क्या सिचुएशन है, यानी कि आपके मोर देन 40 इयर्स हो गए। उस ड्यूरेशन में ऑन एन एवरेज हम एवरी ईयर करीब करीब 30 पीपल को खो दे रहे हैं, और वो फायरिंग में नहीं मर रहे हैं, दुश्मन के गोली से नहीं मर रहे हैं, वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, वैसे सिचुएशन कैलेमिटीज आ जाते हैं, तो उसके कारण उनका कैजुअलिटी हो जाता है। तो आईटीबीपी वैसे एरिया में है जहां बहुत बार सिचुएशन बहुत हार्श हो जाता है। आप जैसे ठंडे के मौसम में जाओ, तो जैसे आप कारगिल में ही देखो क्या सिचुएशन हुआ था कि जो ठंडे के मौसम में दोनों तरफ से एक तरह से एग्रीमेंट टाइप का जैसा कह सकते हो कि भाई ठंडे को जब एक्सट्रीम ठंडा का मौसम है, तो आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे आप भी पीछे चले जाओगे और वो भी पीछे चले जाएंगे। लेकिन उसी का उन्होंने फायदा उठा करके जब इंडियन फोर्सेस पीछे आ गई, तो फिर उन्होंने उस ऊंचाई पे कब्जा कर लिया, और उसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। और वो वक्त था जब दो न्यूक्लियर कैपेबल होस्टाइल कंट्री आमने सामने थे। इनिशियली यस, इट वाज ट्रू, इनिशियली पाकिस्तान डिड नॉट एक्सेप्ट की हमारे लोग फाइट कर रहे हैं, बट द सिचुएशन वाज सेम। तो वैसे ही जो हमारे आईटीबीपी के लोग हैं, वो बहुत हार्श कंडीशन में बहुत बार होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्श कंडीशन में ही, जैसे हमने शुरू में यही बोला था ना कि देखो जो हर फोर्स के होते हैं, अभी डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, कोई पर्सन को आप कंटिन्यूटी में वहां नहीं रख सकते हो, थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, वो हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज प्लस एक तरह से मेंटल ब्लॉकेड भी हो जाते हैं बहुत बार। तो थोड़े से उनके रिक्रिएशन और ये चीज के लिए भी देखो बेलगांव में जो कर्नाटक में है फैसिलिटीज बनाया जा रहा है, प्लस कुछ पीस टाइम में भी पोस्टिंग, जैसे आप देखोगे हर जगह आप दिल्ली में ही देखो या बड़े बड़े शहर में कोशिश की जाती है कि जो शहर मोर और लेस पीसफुल है वहां भी ये फोर्सेस के प्लेस रहते हैं। इस वजह से भी रहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आ सके, प्लस कुछ ये भी रहता ना कि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए आपको अच्छी जगह पोस्टिंग दी जाए। जैसे अब बहुत सारे लोग दिल्ली में पोस्टेड होते हैं, तो दिल्ली में क्या है, आप पीसफुल जगह में हो। वंस जैसे मैं जब गांधीनगर गया था तो वन ऑफ माय रिलेटिव वाज पोस्टेड
बीएसएफ में होने के थे, लेकिन उनको उस समय गांधीनगर दिया हुआ था। तो है ना सही कि आपको कभी कभी ऐसे सिचुएशन में दिया जा रहा है जहां इन नॉर्मल आपका रूटीन टास्क है, तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी टाइम बिता सकते हो। अब सपोज आपको दिल्ली में मिल गया, या आपको गांधीनगर में मिल गया, या आपको मुंबई में मिल गया, या आपको किसी और अर्बन एरिया में मिल गया, तो क्या है कि आपको थोड़ा सा वो अच्छा टाइम की, ठीक है 3 साल 4 साल 5 साल डिपेंडिंग ऑन, जनरली 4 साल का होता है टेन्योर, तो 4 इयर्स आपको अच्छा टाइम मिला, आप अपने फैमिली के साथ अच्छे समय बिता सकते हो उस सारी चीजों को। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरत होती है। ये सब कुछ अचीवमेंट्स हैं। द फोर्स हैज अर्न नंबर ऑफ डेकोरेशंस लाइक पद्मश्री 7 पीपल को मिल चुका है। कीर्ति चक्र, अब देखो पद्मश्री डायरेक्ट आपके आईटीबीपी में सर्व करने के लिए नहीं कि आपने उसके अलावे, जो आप नॉर्मल ड्यूटी में थे उसके अलावे उन्होंने, आपने सपोज करो स्पोर्ट्स में आपने अचीवमेंट प्राप्त किया, या आपने नेचर कंजर्वेशन में, या फिर लोगों के अवेयरनेस में। क्योंकि जो पद्मा अवार्ड्स हैं या भारत रत्न इस टाइप के अवार्ड, ये फोर्स के लिए नहीं है। ये जो है आपने स्पेसिफिक फोर्स के लिए नहीं है, आपने देश के लिए कुछ किया, तो जनरली जो है ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव ड्यूटी, क्योंकि एक्टिव इसमें ड्यूटी के लिए तो आपको जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिल रहे हैं। बट अदर जैसे कोई पर्सन सपोज करो कि एक्टिव फोर्स में है, उसके बाद सपोज रिटायर हुए, तो वो और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो उसके लिए कीर्ति चक्र 2 लोग को, शौर्य चक्र 6 को, सेना मेडल 1, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 19, प्रेसिडेंट्स पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री 2, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 131। अब ये जरूरी नहीं है, ये सब जानना जरूरी नहीं है। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल, आपने यदि आईटीबीपी फर्स्ट दिया है, तो कुछ पर्सन्स के नेम जानो, जैसे ये 7 जो पद्मश्री हैं उनके नेम आप लिख लो यदि फर्स्ट चॉइस आपका है तो। कीर्ति चक्र, देखो कीर्ति चक्र बहुत कम लोगों को दिया जाता है, शौर्य चक्र कम ये है। तो इसमें से अब जैसे सेना मेडल एक ही लोगों को दिया गया है, एक ही पर्सन को दिया, तो ऐसे यदि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो उसको आप लिखो, ठीक है ना, मतलब उस टाइप के चीजों को लिख लो। उन थोड़ा सा जानोगे तो बेटर होगा। हमने ऑलरेडी बोला कि देखो ये कोई भी जो इस टाइप के वीडियो हैं, वो एग्जॉस्टिव नहीं है कि उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगा, नहीं। ये एक है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी, चीजों को थोड़े से आप जानो, कुछ इवेंट्स इंसिडेंट्स हिस्ट्री में हुए हैं उनसे आप लिंक स्टेब्लिश करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि आप रिलेट कर पाओ। हमेशा जो मैं कहता हूँ होलिस्टिक वे में चीजों को कवर करने की कोशिश करो। जब किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उससे आगे पीछे करने की कोशिश करो, उसके संबंध में स्टेब्लिश करने की। यू आर गोइंग टू बी अ डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर, तो आप एक डैगो होने वाले हो, तो आप एक लोगों को लीड करोगे, आप ट्रूप्स को लीड करोगे, तो आपके अंदर थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए जो कनेक्ट द डॉट्स कर सकें, जो रिलेशन स्टेब्लिश कर सकें, जो कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस आइडियाज दे सकें, जो चीज़ों को कनेक्ट करके और एक बेटर आंसर फ्रेम करने के कंडीशन में हो। सो आप ऑफिसर लेवल पे जाते हो और आप ऑलरेडी एक प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई करके जा रहे हो, फिजिकली मेंटली आप फिट हो वैसे सिचुएशन में, तो जब भी आपका खास करके फर्स्ट जो प्रेफरेंस होता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इलेबोरेट करने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है इंटरव्यू से रिलेटेड या इस एग्जाम सीएपीएफ से संबंधित, तो आप पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। जिनको भी लगता है कि आई नीड गाइडेंस, तो आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।